Hello students, today we have to deduce the Ohm's law by using the concept of drift velocity. Okay, so today we have to deduce the Ohm's law by using the concept of drift velocity. So when a potential difference V is applied across a conductor of length L, the drift velocity in terms of V is given by, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है, ठीक है। इसके सो यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज़ वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। सो इन द प्रीवियस वीडियो you know that electric field is equal to V upon L. Electric field E equal to V upon L. So here you can replace this electric field by V upon L. So where V is the potential applied across the conductor. So VD equal to EV tau upon ml. You also familiar with this formula because you obtained this formula in the previous topic, that is I equal to E and A VD. This is the relation between electric current and the drift velocity. So here you can replace this VD by this value. So put the value of VD, that is E and A, and VD is replaced by EV tau upon m. So here you have to find the value of V upon I. तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें V अपॉन आई का रेशो निकालना है, किसके बराबर आएगा। तो यहाँ से जो V अपॉन आई का रेशो हमारा आया वो किसके बराबर आया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। सो यू हैव टू फैमिलियर विद ऑल दिस टर्म्स। व्हाट इज़ एम? इट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज़ एम? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n number of electrons per unit volume, E charge of electron, tau average relaxation time, or A area of cross section of the conductor. So at a fixed temperature the quantities m, l, n, E, tau and A all have the constant value for a given conductor, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एजम्पशन और कंडीशन अप्लाई की है कि किसी फिक्स टेम्परेचर पर ये जितनी भी हमारी सारी क्वांटिटीज़ है, डेट इज़ एम एल एन ई टाउ ए, ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एट पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर ऑल दीज वैल्यूज़ हैव देयर कांस्टेंट वैल्यू. So therefore V upon I, the ratio of V and I will remain constant. Therefore the ratio of V and I will remain constant, and this is the Ohm's law. So this proves the Ohm's law for a conductor, ठीक है। You already know that what is Ohm's law. The ratio of V upon I is equal to constant, and that constant is R, and which is known as the resistance of the conductor. तो आप जानते हो ओम्स लॉ हमारा क्या होता है कि जो हमारा रेशियो होगा पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक करंट का विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज़ डिनोटेड बाय आर, एंड विच इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सो एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट? दैट इज़ एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए. सो here you also obtain the formula for resistance of a conductor. तो यहाँ पर आपने एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस के लिए भी एक फार्मूला ऑब्टेन किया है, डेट इज़ ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस के लिए एक फार्मूला ऑब्टेन किया है, डेट इज़ आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक। सो ऑल्सो वी हैव टू ऑब्टेन ए रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। हमें एक रिलेशन और ऑब्टेन करना है जो कि किस किस में है, रेजिस्टिविटी में यानी रो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन में, और रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ में. सो यू ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस फार्मूला. आप इस फार्मूले से पहले ही परिचित हो, डेट इज़ आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है. सो व्हेन यू पुट द वैल्यू एंड सॉल्व द एल एच एस एंड आर एच एस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रो, ठीक है. सो
when you put the value of r, that is ml upon ne square tau a, okay, on solving the LHS and RHS, then you obtain the value of rho. Okay, so what is the value of rho resistivity? Equal to m upon ne square tau. Okay, on solving the LHS and RHS, we obtain the value for resistivity rho equal to m upon ne square upon tau. So what are the observation? Okay, so obviously rho is independent of the dimension of the conductor. तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, रेजिस्टिविटी है हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी यहाँ पर, ठीक है, एन पे, ई पे, टाउ पे और एम पे. सो रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन बेसिकली ऑन द टू पैरामीटर्स, दैट इज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एन पर, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. क्योंकि ये जो दो क्वांटिटी है ये फिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी हमारा फिक्स रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी हमारा फिक्स है, डेट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. जो इलेक्ट्रॉन का मास है हमारा वो भी फिक्स रहेगा. अगर कोई क्वांटिटी है जो वेरिएबल है जिनमें चेंज आ सकता है वो है हमारा एन और टाउ. तो इसलिए हम कहेंगे जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो हमारी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, डेट इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन, और सेकेंडली डिपेंड्स ऑन द average relaxation time tau, the average time between the two successive collision of an electron. So here we obtain the relation for the resistivity of a conductor in terms of average relaxation time and the electron density. Thank you.